ویسے ایان جو ہے بڑا محنتی اور دھن کا پکا، بہت بہت کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ویسے اللہ کا شکر ہے مرزا بھائی بھی بالکل نہیں گیا، ورنہ جتنی زندگی انہوں نے جیرن بنا رکھی تھی بھابھی کی، ہماری مسکان کی بھی ایسی ہی زندگی ہوتی۔ چلو اسی بہانے تم نے مانا تو صحیح کہ شوہر کا اچھا سلوک بیوی کے لیے کتنا عام ہوتا ہے، ورنہ کچھ دنوں پہلے تک تو تم اچھی اور صابر شاکر بیوی ہونے کے لیکچرز دے رہی تھی مسکان کو۔ لیکچر نہیں دے رہی تھی، ماں کے خدشات تھے۔ آج آپ نے تو بڑی دیر لگا دی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا خوشخبری کے ساتھ لوٹوں گا، یہ رہی مٹھائی، فلیٹ مل گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ارے بیٹے بہت بہت مبارک ہو، بھابھی بھی بس ابھی تمہارا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی ہے۔ بس ایڈوانس دینے میں اور چابیاں لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگا۔ انکل سو گئے کیا؟ ہاں بیٹے وہ تو 9 بجے ہی سو جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، اتنے بزی ہیں؟ سونا نہیں ہے؟ 11:30 بج رہے۔ تم سو جاؤ، میں اسٹڈی میں چلا جاتا ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، یہ مکمل کر کے پھر سو جاؤں گا۔ ایسا کیا کام ہے؟ آفس کے کام میں تو کبھی آپ کو اتنا سیریس اور بزی نہیں دیکھا میں نے اس ٹائم۔ بھائی یہ کام جو ہے فیملی کے متعلق ہے، پتہ ہے صبح وکیل آئے گا، اسے یہ بل دینی ہے میں نے۔ خاموش آبشار کا راز۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک آبشار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ہر 100 سال بعد وہ ایک رات کے لیے بہنا بند کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس رات آبشار کے پیچھے ایک پوشیدہ راستہ ظاہر ہوتا ہے، مگر صرف وہی شخص اسے دیکھ سکتا ہے جس کا دل لالچ سے پاک ہو۔ اسی گاؤں میں 17 سالہ زرین رہتا تھا۔ وہ بچپن سے اس راز کے بارے میں سنتا آیا تھا، مگر اس کا مقصد خزانہ حاصل کرنا نہیں بلکہ حقیقت جاننا تھا۔ جس رات آبشار رکنے والی تھی، زرین سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں اسے ایک زخمی ہرن ملا۔ اس نے اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ کچھ آگے ایک بوڑھی عورت بھاری لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے جا رہی تھی۔ زرین نے گٹھر اپنے کندھے پر رکھا اور انہیں ان کے گھر تک پہنچایا۔ جب وہ آبشار کے پاس پہنچا تو حیرت انگیز طور پر پانی بہنا بند ہو چکا تھا۔ چٹان کے پیچھے ایک روشن غار نظر آ رہی تھی۔ غار کے اندر ایک شفاف کرسٹل رکھا تھا جو ستاروں کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تختی پر یہ الفاظ لکھے تھے: جو انسان دوسروں کی زندگی میں امید کا چشمہ بہاتا ہے، قدرت اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کرسٹل کے نیچے قدیم نقشے اور پانی محفوظ کرنے کے طریقوں پر لکھی ہوئی کتابیں رکھی تھیں۔ زرین وہ سب گاؤں لے آیا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر بارش کا پانی جمع کرنے کے تالاب بنائے، خشک چشموں کو دوبارہ زندہ کیا اور سینکڑوں درخت لگائے۔ چند سال بعد وہ علاقہ، جو کبھی پانی کی کمی کا شکار تھا، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ دور دور سے لوگ اس گاؤں کا نظام دیکھنے آتے تھے۔ جب کسی نے زرین سے پوچھا کیا واقعی آبشار کے پیچھے خزانہ تھا، زرین مسکرا کر بولا، ہاں، مگر وہ سونے کا نہیں تھا۔ اصل خزانہ وہ علم تھا جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ سبق: سب سے قیمتی خزانہ وہ علم اور نیکی ہے جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ پوری نسل کی زندگی بہتر بنا دے۔ خاموش آبشار کا راز۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک آبشار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ہر 100 سال بعد وہ ایک رات کے لیے بہنا بند کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس رات آبشار کے پیچھے ایک پوشیدہ راستہ ظاہر ہوتا ہے، مگر صرف وہی شخص اسے دیکھ سکتا ہے جس کا دل لالچ سے پاک ہو۔ اسی گاؤں میں 17 سالہ زرین رہتا تھا۔ وہ بچپن سے اس راز کے بارے میں سنتا آیا تھا، مگر اس کا مقصد خزانہ حاصل کرنا نہیں بلکہ حقیقت جاننا تھا۔ جس رات آبشار رکنے والی تھی، زرین سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں اسے ایک زخمی ہرن ملا۔ اس نے اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ کچھ آگے ایک بوڑھی عورت بھاری لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے جا رہی تھی۔ زرین نے گٹھر اپنے کندھے پر رکھا اور انہیں ان کے گھر تک پہنچایا۔ جب وہ آبشار کے پاس پہنچا تو حیرت انگیز طور پر پانی بہنا بند ہو چکا تھا۔ چٹان کے پیچھے ایک روشن غار نظر آ رہی تھی۔ غار کے اندر ایک شفاف کرسٹل رکھا تھا جو ستاروں کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تختی پر یہ الفاظ لکھے تھے: جو انسان دوسروں کی زندگی میں امید کا چشمہ بہاتا ہے، قدرت اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کرسٹل کے نیچے قدیم نقشے اور پانی محفوظ کرنے کے طریقوں پر لکھی ہوئی کتابیں رکھی تھیں۔ زرین وہ سب گاؤں لے آیا۔
इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पट्टी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज़ तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नज़र आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पट्टी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज़ तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नज़र आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था।
वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका, जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा, क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था? ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका, जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा, क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था? ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया।
इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज़ तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नज़र आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज़ तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नज़र आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था।
वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका, जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा, क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था? ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका, जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा, क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था? ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया।
इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद ख़जाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज़ तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नज़र आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद ख़जाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज़ तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नज़र आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था।
वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका, जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा, क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था? ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका, जो कभी पानी की कमी का शिकार था, सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा, क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था? ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। क्रिस्टल के नीचे कदीम नक्शे और पानी महफूज करने के तरीक़ों पर लिखी हुई किताबें रखी थीं। ज़रीन वो सब गाँव ले आया।
इसने लोगों के साथ मिलकर बारिश का पानी जमा करने के तालाब बनाए, खुश्क चश्मों को दोबारा जिंदा किया और सैकड़ों दरख्त लगाए। चंद साल बाद वो इलाका जो कभी पानी की कमी का शिकार था सरसब्ज व शादाब हो गया। दूर दूर से लोग इस गांव का निज़ाम देखने आते थे। जब किसी ने ज़रीन से पूछा क्या वाकई आबिशार के पीछे खजाना था, ज़रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोने का नहीं था। असल खजाना वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म और नेकी है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी नस्ल की ज़िंदगी बेहतर बना दे। खामोश आबिशार का राज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक आबिशार थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद वो एक रात के लिए बहना बंद कर देती है। लोग कहते थे कि इस रात आबिशार के पीछे एक पोशीदा रास्ता ज़ाहिर होता है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। उसी गांव में 17 साला ज़रीन रहता था। वो बचपन से इस राज के बारे में सुनता आया था, मगर उसका मकसद खजाना हासिल करना नहीं बल्कि हकीकत जानना था। जिस रात आबिशार रुकने वाली थी, ज़रीन सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी हिरन मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके ज़ख्म पर पिटी बांधी। कुछ आगे एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ियों का गुठर उठाए जा रही थी। ज़रीन ने गुठर अपने कंधे पर रखा और इन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जब वो आबिशार के पास पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर पानी बहना बंद हो चुका था। चट्टान के पीछे एक रोशन गार नजर आ रही थी। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था जो सितारों की रोशनी से चमक रहा था। उसके साथ एक तख्ती पर ये अल्फाज लिखे थे, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद का चश्मा बहाता है, कुदरत उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है।